A very good evening to one and all. Welcome to Career Defense School. So I'm a faculty of Career Defense School. Today I have a sample paper of English. I have a sample paper of 2018 of Scenic School. Today I'm going to solve 9th class English sample paper. So let's get started. Before moving on to the solving of paper, I want to tell you something about English section. So there should be 25 questions in language section means we will be having 25 questions and each question carry 2 marks. So now we move on to the solving of question paper. So these kind of questions are generally asked like the correctly punctuated sentence is punctuation mark. So we have to find correctly punctuated sentence in this. He asked me whether I had done my work. He asked me whether I had. So here asked me in commas. So this is right. But there no commas will be closed. He asked me whether I had done my work. Question mark. No, there should be no question mark. He asked me whether I had done my work, or he asked me whether I had done my work. So, whenever you will be having a sentence like this, said to, you will be having said to. So, in that case, said to Ram, said to only that, you are supposed to start putting inverted commas. Here, ask has been used. So, no commas will come with ask. He asked me. So, here we have asked, so no commas will be there. So, this one is correct answer. If there would be said to, only then you are supposed to put commas. Otherwise, whenever a sentence like this, he asked me, he told me, so no commas come. He asked me whether I had done my work. So this one is correct. No commas would come. So let's move on to the second question. Which of the following will be the correct indirect speech if the statement given below is changed? So this one is direct speech, means the actual words of the speaker have been put in the commas, right? So this one is direct speech. When the actual words of the speaker are put within the inverted commas, is always direct speech. So here we have been asked to convert into indirect speech. So let's start. He said, this one is reporting verb, reporting speech. So he said, so commas will be removed. So we will write that over here. It's okay. That I will be changed according to this one. Subject. So that he shall will be changed into would and should. He, these would change into those. Why we are changing? Because here we have verb in said form, means past form. That's why we are changing. These will be changed into those. Here will be changed into there. It's okay. It seems to me this one is correct answer. Okay. He said that same case will be applied over here. He said so commas will be removed. So if they get removed, we will write that over here. I will be changed into he. This one will be changed into he. That he should. Shall will be changed into should. Leave those. These will be changed into those. It was there. Okay. Let's move to the third one. He said that he would leave those papers here. He would leave those papers here. So next we have he said it will remain same. There is no to like he said commas. We will write that.
because we have to remove commas that it will be changed according to he. It's okay. He. Next we have would shall would be changed into would leave. These would be changed because here we have said, not say. Instead of said, if we had say, so there wouldn't be having any change, right? So he would leave these papers here. Moreover, there has not been changed, so this one is entirely wrong. So let's move on to the paper. He said that he would leave those papers here. These it will be changed. It has been changed to those. He said that commas has been removed, so that has been written over here. The would shall be has been changed into those papers here. Here means so. What we have to do? So next we have to see here. There has been not been changed. So this one is entirely wrong. This one is entirely wrong. So which one is correct? This is wrong, right? There, those these has been not been changed. Those has been written. Here has not been changed. Here has been written. So entirely wrong. This one is also wrong. Whenever we have a shell, we are likely to convert into wood. अगर हम क्या करें कि लाइक अगर हम शेल को शुड में चेंज कर दें क्या इसकी सेंस कैसे बनेगी देखिए हम इसका मतलब ये हुआ ही सेड आई शैल लीव दीज पेपर हियर उसने बोला कि मैं ये जो पेपर है मैं यहाँ पे रख दूंगा तो उसने देखो किस सेंस में बात करी अगर हम शेल को शुड में चेंज करते हैं ही सेड दैट ही शुड लीव दीज पेपर्स हियर इसका मतलब बन जाएगा कि उसको ये पेपर यहाँ पे रखने चाहिए नहीं तो शेल जो है फिर वुड में चेंज होगा अगर शुड में चेंज करेंगे तो सेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो आएगा ही सेड दैट ही वुड लीव दीज पेपर्स हियर so first one is right which one is right first one is absolutely right so we are not supposed to change shall into should अगर हम should में change करते तो सेंस सारी change हो जाएगी और ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये स्पीच है ये इस स्पीच किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होती है यहाँ पे क्या है सेट है अगर सही होता तो ये लास्ट का पार्ट ना चेंज होता लेकिन यहाँ पे हमें दीज भी चेंज करना पड़ा है हेयर इसमें चेंज होता है दीज दोस में चेंज हो जाता है और शेल को हम शुड में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड उसने बोला कि ये जो पेपर है वो वहां पे रखेगा तो ये चीज पास्ट में थी इसलिए हमने चेंज किया है इस सेंटेंस लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड the correct passive form of the following sentence is they asked me my name उन्होंने मेरे से नाम पूछा so while changing active voice subject remains active so which one is they asked me my name so this one is active because subject remains active subject remain active रहता है बहुत active रहता है कि जब active voice की बात हो रही है तो उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा जब हम चेंज कर देते हैं क्या कर देते हैं हम चेंज कर देते हैं इसको तो एक्टिव पैसिव में एक्टिव को पैसिव में तो क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है दिस वन इज सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट वाइल चेंजिंग क्या हो जाएगा ये क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट becomes while changing object becomes subject and subject becomes object object becomes subject so this one will be subject while changing into and this one will become object right so we are going to change from active to passive form active में subject active रहता है और passive में क्या होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है ठीक इसमें चेंज हो जाता है जैसे माय नेम वाज आस्क्ड मी मोर ओवर सेकंड क्या है हमारे पास आस्क्ड है आस्क पूछा गया तो ये जो सेकंड फॉर्म है इसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है
अगर हमने इसको पैसिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, माय नेम आगे लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या बात करी है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये जब हम चेंज करेंगे तो माय नेम हो जाएगा। माय नेम और आस्क है, आस्क V2 फॉर्म है। V2 फॉर्म किसमें चेंज होती है, वॉज या वर में चेंज होगी। तो फिर एक गेम की बात हो रही है तो वॉज आएगा। थर्ड फॉर्म चेंज होती है कि क्या करते हैं, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑलवेज कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आस्क, मी, बाय, देम। तो और साथ में लगेगा बाय और क्या है, दे विल बी चेंज इनटू देम। सो नेक्स्ट वी हैव आई वाज आस्क्ड माय नेम। ठीक है, ये भी हम देखते हैं क्या है। आई वाज आस्क्ड माय नेम, मुझसे मेरा नाम पूछा गया। नहीं, तो अभी तो ये बिल्कुल बीच में से उठाया गया इसको। माय नेम अभी हमने बात करी है कि जब एक्टिव होता है इसको चेंज करते वक्त, पैसिव में चेंज करते वक्त सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। आई वाज आस्क्ड माय नेम, आई वाज आस्क्ड माय नेम, तो दे कहाँ पे गया, नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। दिस वन इज रॉन्ग, so this one is entirely wrong. Next we have me was asked by name by them. तो me तो possessive में है और starting में कभी भी possessive तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में तो कभी आ ही नहीं सकता है, तो ये भी बिल्कुल wrong. My name was asked from them, कि मेरा नाम उनसे पूछा गया या उनके द्वारा पूछा गया, तो ये भी क्या है हमारा गलत होता है। ये भी हमारा गलत है, बिल्कुल गलत है। ये भी रॉन्ग है, ये भी है, राइट। तो बोथ आर रॉन्ग, ये क्या है हमारे रॉन्ग, राइट। तो क्या बचा अब हमारे पास, अगर हम माई नेम वॉज आस्क्ड फ्रॉम देम बोले कि माई नेम वॉज आस्क्ड फ्रॉम देम, उनसे मेरा नाम पूछा गया, तो ये भी नहीं ठीक होगा। तो चलो, कौन सा करेक्ट लग रहा है, ये करेक्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। रूल्स हमें क्या कहते हैं कि हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, माई नेम और V2 की फॉर्म है, ये वॉज लगा, मेरे से पूछा गया और उनके द्वारा। अच्छा, क्या करते हैं हम, बाय का यूज करते हैं कि ये मेरा नाम मुझसे उनके द्वारा पूछा गया, तो द्वारा देन, तो दे को भी तो कन्वर्ट करेंगे ना, ना इसमें कन्वर्ट किया गया है, यहाँ पे चेंज ही नहीं किया गया है इसको। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए माय नेम बाय देम, मी तो ये तो पॉजेसिव में आ गई, ये तो बिल्कुल गलत। माय और यहाँ पे फ्रॉम लग गया, तो कौन सा बचा हमारे पास, अबव। ये कौन सा है हमारा, ये वाला हमारा बिल्कुल ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4. The correct meaning of the word calamity is, correct meaning of the word calamity is disaster, scourge, harm, injury. चलो calamity का पहले मतलब हम क्लियर कर लें, इसका मीनिंग क्या होता है। calamity, calamity का मतलब क्या होता है, डिजास्टर, जब कोई आपदा, जब कोई बहुत ऐसी स्थिति आ जाए, जैसे calamity क्या है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, जो ऐसी विपदा या आपदा आ जाए, मुसीबत आ जाए, उसको हम बोलते हैं। स्कर्श का मतलब होता है लैश, स्कर्श का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लैश, जिसको हिंदी में कौड़ा बोलते हैं, मारने के लिए काम आता है। हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना, इंजरी का मतलब चोट लगना। तो ये डिजास्टर, डिजास्टर भी क्या है, डिजास्टर का मतलब क्या है, जब कोई आपदा आती है, तो कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक फ्लड है, अर्थक्वेक है, कोई लैंडस्लाइड हो गया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड डिजास्टर। So calamity and disaster both are same. So calamity and disaster both are same. Calamity means disaster, आपदा। तो कोई calamity, नेचुरल calamity आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, आप कह सकते हैं कोई मुसीबत आती है, उसको बोलते हैं calamity. Yes, calamity. So this one is correct answer. Okay. So now we have fifth one, red letter day. Red letter day means एक dangerous day, कि बहुत खतरनाक दिन, एक rosy day, बहुत अच्छा important day, और bloody day, bloody मतलब जो बहुत खून खराबे वाला दिन। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है क्या, कि एक बहुत ज्यादा important डे,
जो हमारे लाइफ में या हमारी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट डे होता है उसको बोलते हैं रेड लेटर डे। एंड इम्पोर्टेंट डे। सो आई होप फर्स्ट टू फाइव आपको क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वी हैव liability. The correct antonym of the word asset. एसेट एसेट क्या होता है कि कोई चीज जो बड़ी वैल्यूएबल है हमारे लिए, कोई पर्सन है या कोई थिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो चीज बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। एसेट मीन्स यूजफुल वैल्यूएबल थिंग और पर्सन, एसेट। ठीक है, जो चीज वैल्यूएबल है। अब इसका हमने एंटोनम बनाना है। एंटोनम का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑपोजिट। एंटोनम का मीनिंग क्या होता है? ऑपोजिट, राइट। Liabilities means both, estate means the property, responsibilities, hindrances, रुकावट, responsibilities क्या है? बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आना। एसेट का ऑपोजिट हमेशा लाइबिलिटी होता है, बोझ पर। अगर कोई चीज एसेट है तो वैल्यूएबल है, जो बोझ हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? तो दिस वन वुड बी करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट होगा? ये वाला करेक्ट, एंटोन। So next we have the plural form of alumnus. Alumnus means a person who has received a degree. You can say ex-student. Alumnus is, yes, alumna, alumni, alumni. Yes, which one is? Again, plural form बताना है। इसका बताना है कि हमें alumnus का बताना है कि वो पर्सन जिसने कोई डिग्री रिसीव करी है या कोई एक्स स्टूडेंट है। ठीक है, alumnus, alumnuses, right? Alumni, alumni, this one, alumina and alumni. So this one is correct. इसका क्या होता है कि प्लूरल क्या होगा इसका? Alumni. This one is correct answer. So C is correct answer. Alma mater. Alma mater is the place where one studied, जहाँ पे कोई पढ़ता है, शादी करता है, डाइट पढ़ता है या तो कोई पैदा होता है। अल्मा मेटर वो होता है जहाँ पे एक फर्स्ट एजुकेशन रिसीव करी जाती है, वो जगह जहाँ पे एजुकेशन या एजुकेशन रिसीव करी जाती है फर्स्ट। सो अल्मा मेटर इज द प्लेस वेयर वन स्टडीड। सो दिस वन इज करेक्ट। Identify the part which contains an error in the following sentence. 10 miles are not a long distance. So in this question we have to find an error. हमें क्या करना है कि error देखनी कि 10 miles है, are not a long distance. 10 miles ठीक है, aren't और long तो ठीक है, लंबा डिस्टेंस है, क्या कोई कोई नहीं है इसमें एरर है? इसमें है 10 माइल्स। यहाँ पे 10 माइल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक यूनिट को लेके बात हो रही। ठीक है, या 10 की बात नहीं हो रही, एक माइल को क्या है एक यूनिट में कंसीडर किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इज आएगा। चूज द करेक्ट ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस बिलो मीनिंग। अब हमें एक ऑर्डर है वो हमें बिल्कुल ठीक करना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया that was there a Mahatma Gandhi never in the greater than. So this one is first. Here I am writing over here again. Means first, second, third, fourth, fifth, and sixth. Answer should be history of India. Mahatma Gandhi, greater man. No. There was Mahatma Gandhi, greater man in India. No. तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो अगर हम वन से उठाएं तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। चलो हम ऑप्शन देखते हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? अगर ग्रेटर मैन उठाएं, चलो ग्रेटर मैन देन was there was there महात्मा गांधी देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नो, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा। अब ये देखते हैं हम
5 को उठाते हैं यहाँ से। 5 कौन सा नंबर है हमारा? दिस वन इज 5। नेवर इन द, फिर अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉज देयर, ऐसे भी कोई सेंस नहीं बन रही है हमारी, ठीक है, ऐसे भी कोई सेंस नहीं बन रही है। अगर हम फिफ्थ को उठाएं पहले, चलो हम ऐसे मार्क करते हैं इसको कि हम फिफ्थ को उठा लेते हैं यहाँ से पहले। तो फिफ्थ कौन सा है हमारा? 1 2 3 4 5 5 6 7, इस तरीके से है। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज देयर, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर दैन, फिर आएगा, फिर ग्रेटर देन। तो ये तो सेंस ही नहीं बन रही, कुछ और ही सेंटेंस बन रहा है। अब यहाँ पे आते हैं हम फिफ्थ पे। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज देयर ग्रेटर मैन देन महात्मा गांधी। यस, दिस वन इज करेक्ट। कैसे चल रहा है? नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज देयर ग्रेटर मैन देन महात्मा गांधी। हाँ, कि कभी भी हिस्ट्री में कोई भी इंसान महात्मा गांधी से बड़ा नहीं हुआ है, मतलब कोई इतना महान नहीं हुआ है जितना महात्मा गांधी है। सो दिस वन इज करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद द suitable phrase preposition. He accepted the car, his claim for rupees 3,25,000. अब देखिए, फ्रेज वो होती है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, देखो इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो ये क्या है? फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज। ये कैसे पूरा करेगी इसको? एक्सेप्ट द कार हिज क्लेम फॉर रुपीज। अच्छा उसने कार को जो है एक्सेप्ट कर लिया 3,25,000 की जगह पे, ऑन अकाउंट ऑफ। अच्छा चलो ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं अभी। He accepted the car his claim for rupees 3,25,000। क्लेम की बजाय उसने कार एक्सेप्ट कर ली। क्लेम कितने का था? 3,25,000 का, तो उसने कार एक्सेप्ट कर ली ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, क्लेम के कारण। बाय डिट ऑफ का मतलब होता है बाय मीन्स, सभी सभी कारणों के कारण। यस, बाय डिट ऑफ कहते हैं ना, बाय डिट ऑफ का मतलब होता है कोई हार्ड वर्क। ही गॉट सक्सेस बाय डिट ऑफ इज हार्ड वर्क। बाय डिट ऑफ का मतलब है के कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इन लिeu ऑफ। इन लिeu ऑफ का मतलब होता है उसकी जगह पे, ठीक है, इन प्लेस ऑफ, ठीक है, उसकी जगह पे। एक्सेप्टेड द कार इन lieu of his claim for rupees, उसने कार को एक्सेप्ट कर लिया क्लेम की बजाय, या फिर उसने कार को एक्सेप्ट कर लिया क्लेम के कारण। नहीं, उसने कार को एक्सेप्ट किया जगह पे, उसकी जगह पे। lieu मीन्स उसकी जगह पे। तो दिस वन इज करेक्ट आंसर, राइट। ये भी नहीं हो सकता के कारण। बाय डिंट ऑफ का मतलब कोई मीन्स के कारण होता है, कि कोई मीन्स के कारण, किसी साधन के द्वारा के कारण। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा। तो दिस वन इज इनकरेक्ट, राइट। So now we move on to the 12th question. The suitable prefix for the word bitter. Bitter का क्या बनेगा? Imbitter? नहीं, इसका तो कुछ सेंस ही नहीं बनेगा। Imbitter, inbitter, unbitter, bitter, unbitter, embitter बनेगा। embitter ये एज अ इसका काम कर जाएगा, bitter होना। embitter एज अ वर्ब काम कर जाएगा। embitter, तो दिस वन इज prefix। prefix मतलब जो पहले आके बनाता है, ठीक है। pre मीन्स पहले, तो कौन सा? अनबिटर इज द राइट आंसर। अनबिटर कोई सेंस ही नहीं, अनबिटर इन नहीं, इन ये करेक्ट नहीं है, तो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द fill in the blank with a suitable conjunction. Conjunction क्या होते हैं? They are known, they help to connect two words, sentences, ये connect करने का काम करते हैं। He is slow, he is sure, he is slow, he is sure, ठीक है। and he is sure, he is slow, slow है और sure है। and तो आता है सेम आइडिया के लिए आता है जब एक की बात हो रही है। for he is slow, for he is sure, क्योंकि वो sure है। he is slow,
बट ही इज श्योर, वो स्लो है परंतु श्योर है, तो एंड नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, चलो डी देख लेते हैं। ही इज स्लो और ही इज श्योर। और आता है जब कोई चीज आपको ऑप्ट करनी होती है चॉइस के लिए, और आता है, बट आता है कंट्रास्ट के लिए, लाइक ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वो पुअर है, कंट्रास्ट हो रहा है ऑपोजिट के लिए, तो दिस वन गोज राइट, दिस वन इज राइट। एंड आएगा तो आइडिया सेम नहीं है, फॉर है तो पर्पस के लिए आता है, बट है तो बट एक ओपोज कंट्रास्ट के लिए आ रहा है, ऑपोजिट के लिए आता है, और आता है चॉइस के लिए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत जा रहा है, राइट। So which one is correct? So this one is correct. But is correct. Let's move on to the 14th one. So this is a sample paper. If you solve these kind of papers, it will be great helpful for all of you. 13th one. Yes. 13th we have complete the following maxim. मैक्सिम एक कहावत जिसको हम कहते हैं कि जीनियस विदाउट एजुकेशन इज लाइक सिल्वर इन द जीनियस विदाउट एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पढ़ा लिखा है लेकिन उस चीज का प्रॉपर यूज ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, इसको पूरा करना हमें शॉप होगा, माइन होगा, वेल होगा या पिट होगा। वेल मतलब कुआं, पिट का मतलब खड्डा, शॉप का मतलब दुकान या माइन। हाँ, जीनियस विदाउट एजुकेशन इज लाइक सिल्वर। सिल्वर कहाँ से निकलता है हमें, ये चीज हमें देखते हैं कहाँ से, शॉप से मिलता है सीधा हमें, या हमें वेल से मिलता है या पिट से मिलता है, नहीं माइन से मिलता है ना। वहां से सिल्वर वहीं से, एक्चुअली जो सिल्वर की फॉर्म है माइन से ही तो निकलती है, फिर उनको क्या है चेंज करके, फॉर्म चेंज करके फिर उसको मार्केट में लाया जाता है, तो क्या है माइन इज द करेक्ट आंसर, माइन। तो मैं इसका एक बार मीनिंग आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, इसका मीनिंग क्या एक्चुअली है। क्या है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बस उस चीज का बहुत प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो मान लो कि अगर सिल्वर है या गोल्ड है माइन के अंदर पड़ा हुआ है, उसका यूज क्या है जब तक उसको बाहर ही ना निकाला जाए, तो सो इज विद इज अ मैन। So one should take advantage, full advantage of his or her study. Select the word that is opposite in meaning to the underlined word. My first lecture, तो हमें किसका opposite बताना है, fiasco. What is the meaning of, yes, what is the meaning of fiasco? Fiasco means failure. इसका meaning क्या होता है, इसका meaning क्या होता है, इसका meaning होता है failure. I am writing over here means failure. अब हमें easy हो जाएगा ढूंढना, failure. Yes. My first lecture in the classroom was a fiasco. Success, फेलियर का क्या होगा ये तो इजीली आपको पता चल ही जाएगा। जॉय कुछ होना, फन होना, डिजास्टर, या सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या है यहाँ पे, सक्सेस मतलब फेलियर का ऑपोजिट सक्सेस होगा। अगर कोई फेल हुआ है या किसी को सफलता मिली है तो सफलता, इसका आंसर करेक्ट जाएगा, ठीक है। जॉय, जॉय का मतलब खुशी होना, फन का मतलब मजाक होना, डिजास्टर का मतलब आपदा आनी, कोई मुसीबत आनी, ठीक है। सो fiasco opposite is success. Which one is correct? Fiasco. Is it okay? The right suffix for the word just to make it an abstract noun. अब हमें क्या करना है, suffix, prefix का मतलब होता है कि पहले pre पहले आता है, suffix means बाद में आता है। just से हम justly बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, justify बनाएंगे तो justify करना मीन्स ये तो वर्ब बन रहा है। justice न्याय, ओके तो ये भी देखते हैं। जस्टिंग, जस्टिंग का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, दिस वन इज करेक्ट। जस्टिफाई का मतलब तो न्याय करना, जस्टली, जस्टली भी सेंस नहीं बन रही है, ये भी इनकरेक्ट है। तो कौन सा बचा फिर हमारे पास, जस्टिस। कौन सा बचा हमारे पास, जस्टिस। जस्टिस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इज इट क्लियर,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है थिंग्स व्हिच वी नीदर कैन सी नॉट टच, बस हमारी क्या होती है, फीलिंग्स होती है, लाइक पॉवर्टी, चाइल्डहुड, ठीक है। तो जस्ट से बना जस्टिस, राइट। तो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 17. Select the word that is similar in meaning. जिसका मतलब similar है means you can say synonym. क्या हो जाता है synonym? Synonyms, the requisite energy is derived from the battery. The requisite energy is derived from the battery. Requisite का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है. Requisite means जरूरी, means required. Insignificant जो जरूरी नहीं है, necessary जरूरी, डिफरेंट अलग, स्पेशल जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, आम नहीं है. तो रिक्विजिट का मतलब अगर बहुत जरूरी है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए हमारा, कौन सा आंसर होना चाहिए? यस, नेसेसरी. नेसेसरी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर. नेसेसरी मीन्स बहुत जरूरी. रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड. So next we have select the word that is similar in meaning to the underlined word. देखिए यहाँ पे भी synonym आ गया. Synonym. Synonym means candid. Candid का मतलब क्या होता है? His candid opinion has won him many friends. उसके ये जो opinion था उसकी वजह से उसने अपने बहुत friends को अपने फेवर में कर दिया. कैंडिड. कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक होना, क्लियर होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना. इसका मीनिंग ये होता है. तो कैंडिड का मतलब क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, फ्रैंक. तो नेक्स्ट वी हैव, अब देखिए हमारे पास कौन कौन से हैं. काइंड, कर्टियस, जेनरस या फ्रैंक. कौन सा आ रहा है? काइंड, कर्टियस, जेनरस या फ्रैंक. काइंड होना बहुत दयालु होना, कर्टियस होना बहुत शिष्टाचारी होना, बहुत जिसको एथिक्स होते हैं, ठीक है जी. जेनरस मतलब बहुत दयालु होना. फ्रैंक का मतलब क्या है? बहुत क्लियर होना. क्योंकि इसका मतलब पोलाइट. क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? पोलाइट. तो कैंडिड क्या किसके अकॉर्डिंग जा रहा है? फ्रैंक. फ्रैंक. फ्रैंक जा रहा है इसका आंसर ठीक. तो इसका बिल्कुल आंसर ठीक है फ्रैंक. काइंड नहीं हो सकता, दयालु, कर्टियस मीन्स बहुत शिष्टाचारी, या फिर जिसको आप कह सकते हैं पोलाइट. जेनरस मीन्स विनम्रता. यस. फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब क्लियर होना. Select the word that is opposite in meaning to the underlined word. अब हमारे पास antonyms. Everyone agreed that it was a piece of meticulous research. Meticulous का मतलब पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए. इसका मीनिंग क्या है? Meticulous means careful, बहुत carefully, बड़े ध्यान से. Careless, careful, cautious, yes, scrupulous. केयरलेस का मतलब तो ये हुआ कि जो ध्यान नहीं देता है. केयरफुल का मतलब होता है बहुत ध्यान देने वाला. कॉशियस भी बहुत जल्दी, जो हमेशा चौकन्ना रहता है. स्क्रूपलस मतलब हमेशा. इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीमली अटेंटिव. तो हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है हमें? एंटोनम, ऑपोजिट निकालना है हमारे पास. तो ऑब्वियस है जब केयरफुल है तो बहुत ध्यान देने वाला. जो केयरलेस कौन होता है? जो ध्यान नहीं देता है, राइट. सो दिस वन इज करेक्ट. 20. The word avoid means avoid, fall. So what should be an answer? The word avoid means avoid, fall, generate and hatred. Avoid. Avoid का मतलब क्या होता है? Turn away, टालना जिसको हिंदी में कहते हैं. Avoid करना, गिरना, नफरत होना, या फिर degenerate, degenerate होना. Degenerate का मतलब क्या है? Having lost physical, mental और moral qualities. जिसमें moral, physical qualities भी होती है. वर्ड का मतलब क्या जा रहा है? फिर अवॉइड करना, फॉल, एवरी चीज ऑब्वियस है. वर्ड का मतलब अगर टालना है तो इसका मतलब क्या हुआ? टर्न अवे मीन्स टालना, तो अवॉइड करना. आंसर दिस वन इज राइट. ओके, नेक्स्ट वी हैव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट इज. बोस्ट का मतलब जो बहुत ज्यादा अपने आप को
अपने आप के बारे में बोलने वाला, जो कहते हैं ना बहुत बहुत बोस्टफुल नेचर का है, बहुत ज्यादा अपने आप में ही बोलता रहता है, तो बोलते हैं बोस्ट। और बोलने वाला क्या होता है, देखते हैं जरा हम। बोस्टफुल एडजेक्टिव है हमें, बोस्ट, बोस्टली, बोस्टी, बोस्टाइल, ये भी नहीं जाएगा। बोस्टफुल, बोस्टफुल मतलब बहुत ज्यादा बोस्टफुल नेचर का होना, कि अपने आप में हमेशा अच्छाई बताने वाला, अपने आप के बारे में ही बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला। तो एडजेक्टिव क्या बनेगा, बोस्ट प्लस फुल, बोस्टफुल, द बोस्टफुल मैन। तो एडजेक्टिव क्या बना, एडजेक्टिव हमें क्या बताता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, क्वालिटी बताता है किसी चीज की, राइट। Read the following passage and answer the questions that follow. Vehicles don't move about the Vehicles don't move about the roads for mysterious reasons of their own. अब हम पैसेज पढ़ना है हमें और क्वेश्चन देने हैं। Vehicles don't move about the roads. Move about means from one place to another. For mysterious, mysterious means बहुत secret reasons. So अपने vehicles अपने आप थोड़ा ना चलते हैं, या कोई अपना कोई इनका रीजन थोड़ा ना है, ठीक है। Vehicles don't move about the roads for mysterious reasons of their own. अपने आप नहीं चलते हैं, कोई एक रीजन तो है। They move only because people want them to move in connection with the activities. वो क्यों चलते हैं, क्योंकि लोगों की कुछ एक्टिविटीज होती हैं, परफॉर्म करने के लिए उन्हें व्हीकल्स की जरूरत होती है, लाइक बस, कार। अगर आप कोई बोले कि लाइक एक्टिवा, और कई सोर्सेज है। व्हीकल्स का मतलब क्या है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे बस, कार, कोई भी ट्रेवल करते हो, उसको बोलते हैं व्हीकल्स, राइट। विच द पीपल आर एंगेज्ड इन। अब वो अपने आप तो नहीं चलते हैं, क्योंकि पीपल, हम लोग ही उनको चलाते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए, हम लोग उनका यूज करते हैं। दे मूव ओनली बिकॉज पीपल वांट देम टू मूव इन कनेक्शन विद द एक्टिविटीज। वो क्यों मूव करते हैं, क्योंकि उनके दिन की कुछ एक्टिविटीज होती हैं, इसलिए। Traffic is therefore a function of activities, and because in towns activities mainly take place in buildings. अब कुछ ट्रैफिक इसलिए ट्रैफिक को क्या बोला जाता है कि फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज बोला जाता है, एंड बिकॉज इन टाउन्स एक्टिविटीज मेनली टेक प्लेस इन बिल्डिंग्स। जो ट्रैफिक है, traffic is therefore a function of activities, and because in towns activities mainly take place in buildings. ये एक्टिविटीज का फंक्शन है, क्योंकि टाउन्स में क्या है, एक्टिविटीज ज्यादा क्या है, बिल्डिंग्स में होती हैं। ट्रैफिक क्या है कि ट्रैफिक इन टाउन इज अ फंक्शन ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है कि हर जगह पे आपको, कि लोगों को अपने काम के लिए भी जाना होता है, व्हीकल्स का यूज भी करना होता है, कि बिल्डिंग का मतलब हर जगह पे बहुत ज्यादा हो गया। अगर वो बिल्डिंग भी अगर हम देखें ना, जितने मेट्रो सिटीज है, अंदर के एरिया, तो वहां पे भी क्या है कि बहुत ट्रैफिक है। So the implications of this line of reasoning are inescapable. Yes. Inescapable. Inescapable means unable to be avoided. इसका मतलब क्या हुआ? I am going to write unable to be avoided, जिसको हम avoid नहीं कर सकते, राइट। जिसको हम क्या है, avoid नहीं कर सकते, जिनसे हम बच नहीं सकते। जो इसका मतलब ये हुआ ना, बहुत ज्यादा जरूरी हुआ। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कंक्लूजन। जब हम किसी चीज से कोई कंक्लूजन निकालते हैं, इसका मतलब होता है इम्प्लीकेशन, राइट। तो the implications of this line of reasoning are inescapable. Again, I am telling you, inescapable means जिससे आप बच नहीं सकते, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। Implications mean conclusion can be drawn from something. मतलब जब लास्ट में क्या है, जब हम किसी चीज से कोई कंक्लूजन निकालते हैं, उसका मतलब होता है इम्प्लीकेशन। तो क्या रीजन है कि इनका बहुत बड़ा रोल है, कि ट्रैफिक का मेन कारण क्या है, व्हीकल्स है। व्हीकल्स कौन यूज करता है, हम यूज करते हैं। ये जो रीजनिंग दी गई है, मतलब कि ये जो तर्क दिया गया है ऊपर, उससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। line one of the passage means that the vehicles move on the roads
क्यों करते हैं? एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है क्या? क्या पर्पसेस हैं लोगों के, या इज इन अ हैफिजर्ड फैशन? हैफिजर्ड मतलब बहुत उलट-पुलट सा, एक सिस्टमैटिकली वे से नहीं होता, उसको बोलते हैं हैफिजर्ड। इन वेज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं, तो हम क्यों करते हैं? कि हमारे कुछ अपने पर्पसेस हैं, इसलिए तो हम करते हैं, राइट? So this one is correct answer, right? So 23rd we have, the author says that traffic is a function of activities. He means that ट्रैफिक एक फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज है। ट्रैफिक का मतलब क्या है? बहुत एक्टिविटीज होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमन एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस, ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट ऑन ट्रैफिक। की ह्यूमन की एक्टिविटीज डिपेंडेंट ऑन ट्रैफिक पे, या ट्रैफिक इज नॉट डिपेंडेंट? क्या ट्रैफिक ह्यूमन एक्टिविटीज पे नहीं डिपेंडेंट है? अगर ट्रैफिक ह्यूमन एक्टिविटीज पे नहीं डिपेंडेंट होगा तो ट्रैफिक नहीं होगा। ट्रैफिक इज कनेक्टेड विद ह्यूमन एक्टिविटीज। ट्रैफिक जो है ह्यूमन की जो एक्टिविटीज, हम जो दिन की एक्टिविटीज करते हैं उसके साथ कनेक्टेड है क्या? यस, दिस वन बी करेक्ट। ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट है ट्रैफिक पे, ट्रैफिक इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज, ये नहीं हो सकता। क्यों? लास्ट, यस ठीक है, ट्रैफिक इज कनेक्टेड विद ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या जो ट्रैफिक है ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ क्या है? वो कनेक्टेड है, राइट? The author suggests by his argument that to regulate traffic, more policemen, हाँ, क्या आर्गुमेंट है उसका? क्या तर्क दिया उसने? क्या रीजनिंग दी है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पुलिसमैन की जरूरत होती है, या एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहिए, या टू रेगुलेट ट्रैफिक बिल्डिंग्स हैव टू बी टेकन, या बिल्डिंग्स को देखना चाहिए जहाँ पे ट्रैफिक होती है, या फिर टू अंडरस्टैंड द ट्रैफिक प्रॉब्लम वी मस्ट एग्जामिन द सोशल context in which it is found. Yes, to understand the traffic problem, we must examine social context. Yes, context का मतलब होता है रेफरेंस या फिर सिचुएशन। क्या हमें ट्रैफिक प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि वी मस्ट एग्जामिन द सोशल context in which it is found, कि किस हालात में ये पाया जाता है, क्या सिचुएशन है, या हमारी ये हम कह सकते हैं कि सोशल वे में क्या है, इसकी सिचुएशन है। तीनों तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे कि ज़्यादा पुलिसमैन रखने चाहिए अगर कंट्रोल करना है, तो एक्टिविटीज को, ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, बिल्डिंग्स को देखना है। नहीं, हमें सोशल कंटेक्स्ट के बारे में, हमें ट्रैफिक, अगर हमें ट्रैफिक प्रॉब्लम को समझना है तो हमें ये जो सोशल कंटेक्स्ट मतलब सोशल, सामाजिक रूप से हमें जो सिचुएशन है किस तरीके से पाई जाती है, हमें उस चीज को एग्जामिन करना है, उसका एनालिसिस। सो दिस वन इज, by this line of reasoning the author means idea contained in this line, अब रीजनिंग जो दी है उसने बाय दिस लाइन ऑफ रीजनिंग, इसका मतलब क्या होगा? आइडिया, कोई आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। आइडिया कंटेन इन एनी वन लाइन ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, कि कोई भी जो लाइन का भी आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में बात हो रही है, या फिर आर्ग्यू आर्ग्यू हो रहा है, या दिस वो प्रिंटेड कैरेक्टर्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स जो प्रिंट किए गए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो द मैनर ऑफ आर्ग्यूइंग मतलब आर्ग्यू हो रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। Which one should be correct? Yes, what do you think? आइडिया कंटेन है लाइन में, हाँ जी, किसके बारे में बात हो रही है? द मैनर ऑफ आर्ग्यू, आर्ग्यू हो रहा है, ठीक है। हमें किस तरीके से, ट्रैफिक कौन करता है, ट्रैफिक का मेन अगर रीजन होता है तो क्या रीजन हो सकता है उसका, कि हम अपनी एक्टिविटीज के लिए ही ट्रैफिक, ट्रैफिक अपने आप कोई रीजन थोड़ा ना कि ये जो ट्रैफिक चल रहा है अपने आप थोड़ा ना रीजन है इसका। देखिए एक बार फिर दोबारा से दिखाती हूँ आपको कैसे। Vehicles don't move about the roads for mysterious reason, अपने कोई जो रहस्यवादी अपने आप को नहीं चलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी कुछ एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए लोग इंगेज हैं कामों में, ठीक है। तो ट्रैफिक इसीलिए है ना, फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज बोला गया है कि बहुत हमारे जो मैक्सिमम काम है, एक्टिविटीज है,
ट्रैफिक को क्यों बोला गया है कि लोग व्हीकल्स पे जाते हैं अपने काम करने के लिए, बहुत ट्रैफिक होता है, हमारी एक्टिविटीज है ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह के द्वारा ही तो परफॉर्म करी जाती हैं। टाउन्स एक्टिविटीज क्या है, बिल्डिंग्स में है, क्योंकि अब क्या है टाउन्स में इतनी स्पेस नहीं है, तो क्या अगर एक बिल्डिंग भी है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। ठीक है, तो इम्प्लीकेशंस का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था। इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि कंफ्यूजन निकालना। रीजनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे आर्ग्यू करना। ठीक है, इनएस्केपेबल का मतलब क्या है, जिससे हम बच नहीं सकते। कि ये जो आर्ग्यू किया गया है ये बिल्कुल ठीक है, ये हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। So this was the sample paper of 9th class standing school. If you like my video, don't forget to press the bell icon right below. Thank you. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।